معزز ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا حالات حاضرہ کی ایک اور نشست میں. اور جب ہم آج مل رہے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا ایک عجیب سے دور سے گزر رہی ہے. اور اگر ہم 2020 کی بات کریں تو 2020 ہمارا بڑی الجھنوں میں گزرا ہے. بہت سی ایسی چیزیں بھی جن کی امید نہیں تھی، اور دیکھتے دیکھتے CV-19 سب سے زیادہ بولنے والا لفظ بن گیا ہماری زندگی میں. اور CV-19 سے یہ حال ہوا کہ زندگی تھم گئی، جسے انگریزی میں کہتے ہیں the life came to a stand still. 2021 میں مارس پہ جانے کی بات ہو رہی تھی، کلون سے نئے آدمی پیدا کرنے کی بات ہو رہی تھی، اور یہ سب ہٹ گیا اور اپنی جان بچانے کی بات شروع ہو گئی. اور جان بچانے کے لیے جب ہم آگے بڑھے تو لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا کہ پہلے جان بچائیں گے پھر کام کریں گے. لاک ڈاؤن بڑھتا گیا تو WHO کی وہاں سے ایک رپورٹ آتی ہے کہ CV-19 سے تو لوگ مریں گے، لیکن اس سے زیادہ لوگ بھوکمری اور بے روزگاری سے مریں گے. تو لاک ڈاؤن کا سلسلہ پھر کھلنا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ بھی ایک مجبوری تھی کہ کام دھندہ نہیں چلے گا، کھائیں گے کیا، تو زندگی کیسے آگے بڑھے گی. تو کشمیر میں بھی ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن سسٹمیٹک وے میں اب کھلنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ روزگار کے لیے لوگوں کو کچھ کرنا ہے، زندگی تو گزارنی ہے. اور اس سے ہماری اقتصادیت پہ کیا اثر پڑا، معاشی تبدیلی کیسے آئی، مستقبل میں کیا ہوگا، اور کس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس معاشی بدحالی کے. اس پہ ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، سینئر لیڈر ہیں یہ ہمارے ساتھ ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے ہلال احمد منڈو صاحب میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں. اور آپ کا خیر مقدم ہے دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں. اور شیخ قیوم صاحب سرکردہ صحافی اور معروف اینالسٹ، یہ بھی یہاں موجود ہیں. یہ جو ہم بات کریں گے اس کا تجزیہ کریں گے. منڈو صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں ہم بات کا کہ لاک ڈاؤن ہو گیا، مجبوری تھی. لاک ڈاؤن میں کیا حالت رہی، کیا گزری ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز پہ، کتنا کام ہوا، کیا نقصان ہوا، کیسے آپ نے یہ فیس کیا. اس کے بعد آئیں گے ہم لاک ڈاؤن کی اوپننگ پہ. دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں آنے کا. تو آپ نے ہمیں دعوت دی، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کے مادھیم سے ہم کچھ عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس سے ایڈمنسٹریشن بھی اویئر ہو جائے گی. رہی بات جو لاک ڈاؤن ہوا، جو یہ 22 مارچ سے سٹارٹ ہو گیا لاک ڈاؤن، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں ہمارا بزنس، تو چونکہ یہ گائیڈ لائن تھی منسٹری آف ہوم افیئرس کی کہ اس طرح لاک ڈاؤن بالکل ٹوٹل پہلا جو مہینہ تھا، دوسرا بھی مہینہ تھا، ٹوٹل بند رہا. تو بزنس بالکل زیرو تھا. اس وجہ سے ہم بالکل کچھ نہیں کر سکے. لوگ گھروں میں بیٹھے، پہلے جو 2 مہینے تھے بالکل ٹوٹل لوگ گھروں میں بیٹھے. اس وجہ سے کوئی بزنس نہیں ہو سکا، کوئی کام نہیں ہوا. ٹل جو لاسٹ کی جو گائیڈ لائن آئی تھی، جو میں سری نگر کی بات کروں گا، جو یہاں پہ پرسوں 2 دن پہلے جو ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ، تو انہوں نے وہ جو گائیڈ لائن کی اس کے مطابق وہ ایک روسٹر بنا دیا. اب جا کے اب یہ سٹارٹ ہو گیا سیٹرڈے سے، رائٹ فرام سیٹرڈے. تو تب سے ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے. تو ابھی دیکھیے پورا ابھی مطلب آج سیکنڈ سنڈے تو کل بند ہی تھا. یہ اب 2-3 دن ہوئے. ہاں بالکل 2-3 دن ہوئے. اس میں مطلب یہ ہے کہ ابھی مطلب بزنس تو ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک بات بزنس سٹارٹ میں آئیں گے، آپ کا کیا تخمینہ ہوگا، کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ دیکھیے جی، میں یہ جو نقصان ہمارا ہے، پہلے جو میں اس کو اوور آل تو یہاں پہ حالات نامساجد حالات رہے. جو ہمارا ڈاٹا ہے اگست سے لے کے 5 اگست سے لے کے 19، تو پہلے تو وہ 18,000 کا کروڑ دسمبر تک تھا جی. اور جو اب اس کے بعد یہ جو 3 مہینہ کنٹینیو بند رہا، میرے حساب سے یہ جو ہمارا ڈاٹا ہے، ہمارے جو آفس میں ڈاٹا ہے، 15,000 کروڑ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے، اور 18 میں 15 جمع ہو گئے، 18 میں اور 15 ہو گئے، کل ملا کے ہمارے پاس 33,000 کا گھاٹا. ہاں اس ٹائم اوور آل اسٹیٹ کا نقصان ہے. جی. اب آپ نے ابھی لاک ڈاؤن کی بات کی، کھلنے کی بات کی، ہم اس پہ آئیں گے. پہلے شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں، قیوم صاحب سے. قیوم صاحب، لاک ڈاؤن ہو گیا، سڈنلی ہو گیا لاک ڈاؤن جی. اور اس کے بعد ہمیں اثر محسوس ہونے لگا کہ لاک ڈاؤن سے چلی زندگی تو بچ رہی ہے، لیکن اور کیا نقصانات ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ہینڈل کیا پھر لوگوں نے، جیسے ان جیسے لوگوں نے؟ دیکھیے، پہلی ایک بات یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہوا وہ ایک نیشنل مجبوری تھی، اس کا کوئی نعم البدل ہمارے پاس نہیں تھا. اور اس کے بعد جو کھلا
वो भी उसी तरह वो भी एक नेशनल मजबूरी बन गई। बिल्कुल है। तो अगर आप इसको लिंक करेंगे विद कोविड, देखिए ऐसा है कैसर साहब, कोविड के जो प्रोटोकॉल है वो दिन ब दिन उतने बदल रहे हैं कि कोई दुनिया का सबसे बड़ा पल्मोनोलॉजिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट वो नहीं आपको कह सकता है किसी इत्मीनान के साथ कि ये बात है, बिल्कुल ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अब हमारे पास कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, वेयरिंग ऑफ मास्क है, नॉट अटेंडिंग क्राउडेड प्लेसेस है, ये एक हमारे दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स। मगर देयर आर केसेस जिन्हें बोलता प्रिवेंशन करके भी वो लॉकडाउन मतलब वो इसकी जद में आ गए। सो डॉक्टर साहिबान को इससे आप सिर्फ बरी कर सकते हैं, बरी जिम्मा है, क्योंकि जितना कैसर कलंदर और शेख कोई उनको पता है, मुझे लगता है डॉक्टर साहिबान को भी उससे थोड़ा ज्यादा पता होगा। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ना WHO भी रोज बदल रहा है। उनके जितने देखिए दैट इज चेंजिंग द गोल पोस्ट व्हेन द मैच इज ऑन, दैट इज द डेंजर। देखिए पहले आपने फरमाया कि ये जी 2 मीटर 3 मीटर के फासले पे जाके ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। आज का जो लेटेस्ट है वो है कि 16 घंटे क्लोज स्पेस में एरोसॉल्स पर ये ड्रॉपलेट्स रहते हैं। सो बंद कमरे में अगर 16 घंटे पहले भी कोई कोविड का पेशेंट आया है, यू कैन कैच इन्फेक्शन। देखिए अब जी ये जो आप कह रहे हैं ना, वो एसिम्प्टोमेटिक का भी मामला था पहले। एसिम्प्टोमेटिक का मामला जो है वो इससे खतरनाक है। बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि वो जरूरी नहीं है वो कुछ दिखाए और उसे फैले, वो नहीं दिखाएगा जरूरी। इसके अगर बिजनेस पे आ जाते हैं, देखिए मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। देखिए इन बेचारों के तो है, इट इज द सिचुएशन बिटवीन ए हार्ड रॉक, आगे जो बोलते हैं आप, रॉक एंड हार्ड सरफेस। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया ने। 5 अगस्त से ये बेचारे बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे, उसके बाद पड़ गए इनको जान के लाले। मैं अभी आपसे बात कर रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ये लोग जिंदा कैसे रहे। सही है। देखिए हमारे वक्त में और आपके वक्त में सैलरीड क्लास की अगर 2 महीने सैलरी बंद हो जाती थी तो जो आपके मोहल्ले का दुकानदार होता था वो तो वहां उधार देना बंद कर देता। तो इन लोगों में या तो कोई मेरेकल है या तो उतने पैसे जमा है कि जिंदा रहे। हिलाल साहब से बात करेंगे। हिलाल साहब, अभी बात हुई कि आपने कहा कि लॉकडाउन हो गया, वो हो गया, 33,000 करोड़ का पिछले 1 साल से हमें लॉस है। चलिए अब लॉकडाउन खुल गया, अब क्या उम्मीद है, क्या चेंज आएगा? देखिए मैं इसमें एक ही बात कहूँगा, ये जो 2 दिन से अभी मार्केट खुल गया, सैटरडे को और मंडे को, आज सेकंड डे है, ये तो समझो दुकान खुलने से कुछ नहीं होगा। क्यों? इसमें हाँ बिल्कुल, इसमें मतलब दुकानदार जो मैं अभी मैं 3 महीने की बात करूँगा, आप छोड़िए अगस्त को, 3 महीने से कंटिन्यू जो एडवाइजरी हुई थी उसके मुताबिक कोई दुकानदार दुकान नहीं खोल सकता था। अब देखो मैं अभी फूड आइटम की बात कहूँगा, जो आइटम 3 महीने में था, जो मतलब फूड आइटम होता है, उसमें बहुत सारी एक्सपायरी भी होगी, वो तो दुकानदार भेज नहीं सकता है। उसके बाद एक्सपायरी के बाद जितने भी आइटम हैं, बहुत से दुकानदारों के पास ऐसे हैं, मतलब दुकानों जिन्होंने अभी सेटअप नहीं पूरा किया है, कि वहाँ चूहों ने बहुत माल खाया। अब देखिए अभी बिजनेस उनको स्टार्ट करना है नए सिरे से। 3 महीने पे जो जरे माश उनके पास जो था वो तो बेचारों ने घरों पे खा लिया। दुकान पे निकलते उनकी तो देखो, मैं आपको कैसर साहब क्लियर बोल दूंगा, कोई शौक से घर से बाहर नहीं निकलता है इस टाइम, इस मारामारी में। उनको पता हमारी जान को खतरा है। इस टाइम तो वही आदमी निकलेगा जिसकी मजबूरी होगी, मतलब जिसको मतलब जैसे कोविड-19 है, ये भी एक बीमारी है, भूखमरी की बीमारी। इससे जिनको घर में जरूरत होगी वो बेचारा निकलता है। अब जबकि गवर्नमेंट एडवाइजरी थी, गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनको नहीं जाने देती बाहर, तो वो माल वहां पे खराब हो गया उनका। देखिए एक बात है हिलाल साहब, बहुत सा माल बिका दी, हम नहीं कह सकते कुछ नहीं बिका इन दिनों। हाँ। जैसे जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल का माल था वो तो बिकता रहा, चाहे तेल हो, आटा हो, चावल हो, घी हो, ये हो, मिर्च हो, वो तो बिकता रहा। कहीं ना कहीं से दुकानदार ने आपके घर पहुंचाया या आप दुकानदार तक पहुंच गए, उसकी सप्लाई भी आती रही, लेकिन वो एक छोटा स्केल है, वो रिटेलर का काम है। आप मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं, सारे यूनिट बंद हैं, कैसे रिवाइव होंगे? वही मैं कह रहा हूँ, मतलब उनको पहले गवर्नमेंट को कुछ टच करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस, और वो जो उनको लोन्स प्रोवाइड करेंगे वो इंटरेस्ट फ्री होने चाहिए। देखो अभी तो अगर कोई चीज भी बनाएंगे ना, इस टाइम तो मार्केट है नहीं कुछ, अगर इस टाइम तो गवर्नमेंट पैसा भी दे रहा है इस टाइम, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बिल्कुल इजी लोन्स भी इस वक्त प्रोवाइड हो रहे हैं, मगर जब मार्केट ही नहीं है तो वो कैसे उनको कर सकते हैं? आपके मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया,
खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज लाई या बनाई, जिसने ये खरीदनी है उसके पास खरीदने का पैसा नहीं है, उसके पास पैसा है ना? ज़राई माश है ना? ज़राई माश नहीं है इस वक्त, सिर्फ 5 लाख जो हमारे मुलाजिम है स्टेट के, वही पैसा घूमता है। अदरवाइज मार्केट में पैसा है नहीं कुछ। जी। जो कोई आदमी जाता खरीदने के लिए, कुछ कोई चीज लाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको पावर नहीं है। तो वो मसला है कि उसमें गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा, सो दैट कि ये फिर ये मैन्युफैक्चरिंग हमारी पटरी पे आ जाए। कयूम साहब, जैसे अभी बात हुई मैन्युफैक्चरिंग की, सारे यूनिट बंद हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर दुकानदार किसी से लोन भी लेता है तो उसको रीपे करना है, उसको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो था, उसके लिए कोई खास तब्दीली खास नहीं आई है उसके में। तो वो अगर इन्वेस्ट करता है, रिटर्न्स नहीं है, वो कैसे इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। देखिए पहले कैसा था, मैं मंडो साहब के लिए क्लियर कर दूं कि देयर इज नथिंग लाइक इंटरेस्ट फ्री। नहीं, देयर आर नो फ्री लंचेस इन एनी इकोनॉमी, कहीं नहीं, दुनिया की किसी भी इकोनॉमी को आप देख ले, इंटरेस्ट फ्री कहीं नहीं होता, क्योंकि वो मंडो साहब का ही पैसा है जो दूसरे दरवाजे से बैंक इनको देगा। बिल्कुल। सो व्हाट विल दे पे हिम? देखिए इसको 4%, 2%, 3% तो गारंटी है, तो इसी का पैसा मैं इसी को दूंगा और इससे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो इंटरेस्ट फ्री होता नहीं कुछ। यस, दे कैन सपोर्ट देम, गवर्नमेंट हैव टू सपोर्ट देम, दे हैव टू डेफर देयर, अगर इनकी कुछ देर के लिए ना ले, वो डेफर करें, 1 साल इंटरेस्ट ना ले, 1 साल इंटरेस्ट ना लें। और मुझे लगता है ऐसा भी है कि अगर गवर्नमेंट शॉप्स कहीं हैं तो माइट भी दे कैन डेफर देयर रेंट्स आल्सो, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि किराएदारों को मत निकालो अगर वो नेट नहीं दे सकते, मगर उठना अपने टांगों पे इन्हीं को पड़ेगा। देखिए ही हैज बीन डैश टू द ग्राउंड लाइक ऑल ऑफ अस, उठना इन्हीं को पड़ेगा। अगर ये मान के ये चलेंगे कि गवर्नमेंट आके हमारा हाथ थाम के उठाएगी, ऐसा किसी सोसाइटी में कभी अब देखें ना, अब वो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है जी, उसमें इनके लिए क्या है? देखिए तो क्यों नहीं है, आप मेरी तरफ मेरे साथ आए, मैं आपको उतने सब्ज बाग दिखाऊं। इनके लिए भी होगा, मैं नहीं कह रहा, मगर इनके लिए तब होगा ना जब ये खुद उठेंगे। अभी मंडो साहब जी, बिलाल साहब, 20 लाख जो पैकेज है, मुझे पहले ये कैसे साहब, आप तो अल्लाह माशाल्लाह, आपको तो पूरे हालात पे नजर है, हर एक चीज पे नजर रखने वाले आदमी। ये जो 20 लाख हमारे वजीर आजम साहब ने पैकेज का ऐलान किया था इस कोविड में ही, मुझे एक चीज बताइए आप, ये पैकेज है कि इसको आप पैकेज का नाम देंगे या लोन, मतलब लोन है? मुझे बताइए। ज्यादा लोन ही है, मतलब इसमें जैसे कि MSME में इसमें 3 लाख करोड़ बिल्कुल है। वो क्या चीज है, मतलब मुझे बताइए। वो तो आप इसको हम कहेंगे ये प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर और टैक्स करिए, मतलब बिजनेस कर रहे हैं इससे कि हमें कुछ रिलैक्सेशन मिल रही है। जैसे इसमें आपने MSME की बात कही कि 3 लाख करोड़ उनके लिए हैं, उनके यूनिट रुक गए हैं, यूनिट स्टार्ट करने के लिए ये पैसा मिलेगा। वो तो ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ यूनिट फर्स्ट, मगर मुझे एक चीज बताए, क्या वो उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रहे हैं? ये तो बिजनेस, मतलब हम पैकेज उस चीज को कह सकते हैं जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि इसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए। वो मुझे राहत के हिसाब से भी बात करेंगे, तो क्या चीज मिला इसमें हमें? क्या मिला बताइए? कुछ नहीं मिला। ये तो लोन है, लोन पे लोन, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। और ये हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी लोन हो। पहले भी लोन बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, 2014 में भी हमारे ऐलानात कुछ हुए थे सैलाब के बाद। नहीं, सैलाब में कुछ ऐलानात हुए थे, जैसे कि हमारे वजीर आजम ने कुछ 20,000 करोड़ का ऐलान किया था। हमारे जो सैलाब से कुछ लोग जैसे मकानों में डैमेज हुआ था, दुकानदार, वो भी देने से कासिर रहे। देखिए एक बात बताएं मुझे, अगस्त 2019 से पहले आप सत्यपाल मलिक जी यहाँ गवर्नर थे, उनसे मिले। हाँ बिल्कुल, आप भी उसमें शामिल थे जो मिले। आप लोगों ने उनको कुछ मेमोरेंडम दिया, उनने कुछ अश्योरेंस दी, वो क्या था? वो एक्चुअली जुलाई के महीने में थे, अगस्त से पहले, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन जो 10 लाख दुकानों की रिप्रेजेंटेशन करते थे, हमारे सदर बशीर अहमद राठौर साहब, कुछ साहब और हम गए थे, तो हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी। उन दिनों सत्यपाल मलिक साहब थे ऑनरेबल गवर्नर यहाँ के, तो हमने उसमें एक जो हमारा ऑलरेडी तो उस वक्त सफर कर रहे थे ट्रेडर, 2019 में ही सफर करे, क्योंकि यहाँ से बदकिस्मती हमारे यहाँ इस कौम की है कि हालात बिल्कुल खराब रहे, जिस वजह से मतलब हमारी जो हालत थी, इकोनॉमिकल हालत थी, दिन ब दिन खराबी होती। जो मलिक साहब ने अश्योरेंस दी थी, कुछ हुआ उसमें? उन्होंने हमने उनको प्रपोजल दिया था कि आप जो यहाँ पे दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको आप सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड कीजिए।
इंटरेस्ट फ्री, जैसे कि अभी कैसर साहब ने कहा, मैं कैसर कयूम साहब ने अभी बोला कि जी गवर्नमेंट के पास ऐसा प्रोविजन नहीं है। बहरहाल हम एशिया में पैदा हुए, ये हमारी बदकिस्मती है। अमेरिका बदल नहीं सकते हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते हैं। अब वरना तो अमेरिका में आप अगर जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ कोविड में लोगों को मतलब ऐसे मतलब यूएस ने भी नहीं दिया, कनाडा ने दिया, कनाडा न्यूजीलैंड ने दिया, साउथ कोरिया ने दिया, हाँ उन्होंने दे दिया, तो क्यों नहीं हो सकता है? तो मतलब ये चीज हो सकता है, मतलब क्यों नहीं हो सकता है? गवर्नमेंट अगर चाहे कुछ भी हो सकता है। कयूम साहब इसी बात पे देखिए मोंडो साहब से मैं एक बात क्लियर करूं, इनका अपनी टांगों पे फिर उठना सिर्फ इनके लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुत जरूरी है। बिकॉज द इकोनॉमी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट, देखिए इकोनॉमी बैठ जाएगी, ठप हो जाएगी जब तक वर्क फोर्स नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रेडर नहीं होगा, कंट्रीज इकोनॉमी विल नॉट टेक ऑफ। सो जितना इनके लिए जाती तौर इंडिविजुअल लेवल पे उठना जरूरी है, उतना हुकूमत के लिए, मुल्क की माशियत के लिए जरूरी है कि ये लोग उठे। सो हैंड होल्डिंग इनकी होनी चाहिए, हैंड होल्डिंग होगी। मेरे कहने का मुद्दा सिर्फ ये था कि उठना इनको है। आप फ्री बीज नहीं है, देखिए फ्री बीज नहीं मिलेंगी क्योंकि दिस कंट्री हैज नो प्रोविजन फॉर फ्री बीज। आपने देख लिया हमारा जीडीपी किधर पहुंच गया। बिल्कुल। और देखो ये जब हम कश्मीर के जे.एंड.के जीडीपी की बात करते हैं, उसमें 8% कंट्रीब्यूशन तो हॉर्टिकल्चर का है, जिसमें 33 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, उसका यहाँ हम जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ भी देखना है। देखिए उसका सत्यानाश हो गया है जी हिलाल साहब। देखिए अभी जो उठने की बात कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट को हमें कुछ चांस देना चाहिए कि गवर्नमेंट भी अपना रवैया थोड़ा सा मतलब हमारी तरफ उसको सिंपथीज होनी चाहिए। वही कह रहा हूं मैं, सिंपथीज ये है, देखिए मैं आप बात करूं, जैसे कि अभी मल्टी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किए। आप बताइए ये स्टेट का कौन उसमें वो क्वालिफाई एलिजिबल होता है? जैसे कि हमारा सैंड वाला है, हमको सैंड जो यहाँ पे अब निकलती थी वो बेचारे भी उनको ये किए, और मतलब उनको सैंड निकालने नहीं देते। क्यों जी? आप अब कोई यहाँ का लेता, उसमें ऐसे प्रोविजन आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए उनको जो एलिजिबल थे, जो आपने क्राइटेरिया क्यों नहीं वो मतलब अगर इनको स्टेट में इकोनॉमी डेवलप करनी है, यहाँ के स्टेट के जो जितने भी ठेकेदार हैं मतलब उनको मतलब एलिजिबल बनाए, उसमें नरमी कर दीजिए जो फॉर्मेलिटीज है, तो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। मंडो साहब एक बात होगी, मैं कयूम साहब से भी बात करूंगा कि देखिए इस वक्त अब रास्ता ऐसे डिफरेंटली खुला है कि बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करें। एजुकेशन में बात हो रही है कि यहाँ सेटअप करेंगे लोग। अभी यहाँ सिर्फ आते थे हमारे पास कोचिंग सेंटर्स, बिल्कुल, लेकिन अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी आएंगे, महंगी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो ऐसे आपको लगता है कि आपके मुस्तकबिल में बाहर की इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ, जिससे आपको फायदा होगा? बाहर के लोग इन्वेस्ट करना शुरू कश्मीर में करेंगे, इसमें आप लोगों को भी काम मिलेगा? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेरी नजर में तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे तो उसमें तो एक चीज है कि उनको बड़ा रिलीफ दी जाती है। हाँ, एक तो है ना, ऑब्वियसली तभी तो वो यहाँ के ठेकेदार बैठे हैं। अगर स्टेट को इवन हमारा पानी, यहाँ का हमारा पानी भी बाहर से आ रहा है, पैकेज वाटर। हाँ, पैकेज वाटर। क्या यहाँ मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसे पानी की कोई, हमारे पास बहुत यहाँ पानी बहुत ज्यादा यूनिट है, बड़े अच्छे यूनिट है। यही बात की अगर वो बाहर की इन्वेस्टमेंट यहाँ शुरू हो जाती है तो उसमें एक बात पहले मैं कहूंगा, जो कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने कुछ देर पहले कही कि 99 से 1999 से आज तक यहाँ 3000 दिन लॉकडाउन हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो आएगा कौन ये बताइए मुझे। देखिए इसके बावजूद मैं कहता हूँ कैसर साहब, ये जो द फर्स्ट रूल ऑफ कॉमर्स इज दैट द बिग फिश विल ईट द स्मॉल फिश। ये सही है। अगर आपने मार्केट इकोनॉमी तो उसके साथ चल मार्केट इकोनॉमी कर दी आपने यहाँ, तो सच रिटेलर्स विल कम हियर। जो हमारा बेचारा सड़क, जो हमारा एक छोटा सा गांव का मोहल्ले का रिटेलर है, ही कैन नॉट सस्टेन, क्योंकि वो बड़े डिस्काउंट देगा, नहीं हो सकता। क्योंकि फ्री इकोनॉमी में मैं प्रोटेक्शन नहीं दे सकता मंडू साहब को, और जो बाहर जाएगा उसको बोलूंगा तुमको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ही इज ऑलरेडी कमिंग विद एन अम्ब्रेला, उसके सर पे एक छतरी है, इनके सर पे कुछ नहीं, सो उसमें ये पिट जाएंगे। सो व्हाट ही वांट्स इज प्रोटेक्शन फॉर सम टाइम। अच्छा, फॉर मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। सम टाइम ये नहीं रुका सकते। देखिए वर्ल्ड इज ओपन इकोनॉमी ना, कोई नहीं रुका सकता, ना मैं रुका सकता हूँ,
ना मंडू साहब रुका सकते, ना आप रुका सकते, बाहर के आएंगे। बिल्कुल। और जो अब हालात यहाँ हैं, बाहर वालों को आना ही आना है। बिल्कुल आना है। तो इनने सर्वाइव करना है डिस्पाइट दैट। मगर कब ये सर्वाइव करेंगे? जब तब तक आप इनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, इनको प्रोटेक्शन देंगे, ताकि ये टुमारो इफ दे कैन नॉट रिप्लेस द आउटसाइडर, दे कैन एटलीस्ट कम्पीट। कयूम साहब, एक बात इसमें हो सकती है, जैसे कि अब बाहर वाला आया बड़ी चीज में इन्वेस्ट करने, उसकी जो छोटे कंपोनेंट्स बनने हैं, जो छोटी चीजें बननी है, जो सप्लाई करनी है, वो उसको इजाजत न दी जाए, वो कहा जाए कि लोकल से करो। वही प्रोटेक्शन मैंने वही जो लोकल लफ्ज़ से इस्तेमाल करो। किया कि इनको प्रोटेक्शन चाहिए। वो प्रोटेक्शन आप इनको बाय वे ऑफ टैक्सेस देते हैं, प्रोटेक्शन बाय वे ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज देते हैं। ये गवर्नमेंट को समझना होगा। और ऐसा नहीं हो सकता, गवर्नमेंट कैन नॉट बी ब्लाइंड टू देयर प्रॉब्लम। देखिए, इनके बगैर नहीं चलेगा, बाहर का कि क्या करेगा? बिल्कुल। हाउ विल ही डू बिजनेस? उसको कौन प्रोवाइड करेगा? देखिए, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। अगर ये लोग नहीं चाहते हैं, लाल चौक में चौथी दुकान नहीं खुल सकती, ये मेरा मानना है। इनकी जिंदगी हो गई यही करते। सो दीज पीपल हैव टू बी टेकन अलोंग। अब ये देखिए, जो जॉइंट सफर यहाँ चलेगा, बाहर का है, अमेरिका का है, दिल्ली का है, उनको इनको साथ लेके चलना है। He cannot do it alone। देखिए, उनके लिए सस्ता भी वही पड़ता है। सस्ता ही नहीं, कहीं नहीं हुआ है दुनिया में, कहीं भी आप बता दे जाए इन्वेस्टमेंट लोकल्स के बगैर इट इज द लोकल हु हैव टू कैरी। मंडू साहब, वो फियर नहीं रहना चाहिए मंडू साहब। देखिए, ये कहते हैं वो डर ना रहे आपको कि बाहर मगर वाला इनको आके आपकी protection बिजनेस चाहिए। खाएगा, लेकिन वो आपकी बिजनेस बढ़ा भी सकता है और आप उसके साथ बिजनेस कर मगर सकते हैं। तब हो सकता है जब इनको प्रोटेक्शन मिलेगी कि ये तब तक उसके सामने खड़े होने के लायक बने। बिल्कुल। अगर उसने इनको रेंगता पाया। अब देखिए, मंडू साहब ने एक चीज फरमाई कि इन्हें कहा कि वो जब बनाते हैं, समझिए कौन अप्लाई कर सकता है टेंडर के लिए, आपका टैक्स होना चाहिए साल में 1 करोड़ टैक्स रिटर्न। बिल्कुल। यहाँ किसका 1 करोड़ होगा इनमें से मुश्किल से किसी का टैक्स रिटर्न जी। तो इसीलिए ये उसमें इनको रिलीफ मिलनी चाहिए। उसको छोड़ देना। अब जरूरी नहीं ना कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है, इनके लिए अपने भी तो एवेन्यूज है ना जहाँ ये क्वालिफाई। मंडू साहब से पूछते हैं, मंडू साहब आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप आखिर में मुझे बता दें या हमें बता दें, सुनने देखने वाले यहाँ हैं, कि क्या उम्मीद रखते हैं आप कि इससे अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम यहीं रुके रहेंगे? देखिए, इसमें तो मतलब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, सरकार को तो, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है गवर्नमेंट इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब जो लोग इस वक्त परेशान हैं, सड़कों पे हैं, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, तो इसमें सरकार को सामने आना पड़ेगा और लोगों को भी उनका मॉरल सपोर्ट मिलेगा। देखिए, KCCI के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 30 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी, तो उनने एक बात वहाँ कही, उनने इसके बारे में कहा कि हमें एक इकोनॉमिक पैकेज दे दो, क्योंकि हमें 10 महीने हो गए लॉकडाउन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपको लगता है उनकी बात आगे पहुंचेगी? इंशाल्लाह, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, बात तो आगे पहुंचनी चाहिए। जी जी। तो इंशाल्लाह हाँ, तो उनकी बात भी आगे पहुंचेगी और हम भी मतलब जितनी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एक डायरेक्शन में खींच रही है, दूसरी डायरेक्शन में खींच रही है। हर एक सोचता है कि पहले मेरा फायदा हो, फिर बाकियों का सोचेंगे, क्योंकि हमने वो टसल यहाँ देखा है। आप क्या कहते हैं? आपकी सारी फेडरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन मिल रही है इकट्ठे? हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा जो मतलब एजेंडा है वो एक ही है सबों का जी। भले ही बात अलग है, मगर हमारा एजेंडा सब ऑर्गेनाइजेशन का एक है, चाहे उसमें चैमर हो, कश्मीर ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो ना यहाँ पे मेन ट्रेड जो डील करती है, 10 लाख दुकानदार की रिप्रेजेंटेशन करती है, FCI के जितनी भी है, हमारी बात एक ही है कि यहाँ का ट्रेड आगे चले। क्या इसमें कोई ब्लूप्रिंट आपने दिया है कि हमें क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल। कि आप सिर्फ कह रहे हैं ये कम करो, वो ज्यादा करो? नहीं, एक डॉक्यूमेंट बना के सामने पेश कर दिया सरकार के, आप इसको फॉलो करें, हमें फायदा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई बन रही है। मैंने अभी देखा, मुझे एक माहिर ने कहा पोल्ट्री की कुछ बनाई है, और वो फ्लॉज ही फ्लॉज है उस पोल्ट्री की पॉलिसी में, क्योंकि शायद इंटरवेंशन इंडस्ट्री की तरफ से नहीं हुई है। कैसर साहब, वैसे भी हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को अपना ब्लूप्रिंट पेश किया है जी। यहाँ पे वो कोविड के बाद किया है, क्योंकि हालात बदल गए। नहीं, हमने कोविड से पहले भी उनको दे दिया है, कोविड के बाद भी दे दिया है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, बातें तो उनके साथ हो रही है, चाहे वो मतलब स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे ही। एक्चुअली तो वो सेंटर को ही करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही तो हम सेंटर का हिस्सा है ना। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा, चाहे वो मतलब यहाँ टेरिटरी में आप बोलिए, मतलब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि हमारे LG साहब है, चाहे उनकी बात हो या मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उन तक ये बात पहुंची, हमने ब्लूप्रिंट वहां तक पहुंचाया है। तो रेस्पॉन्स क्या है? रेस्पॉन्स इंशाल्लाह, मैंने कहा ना, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, मगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है अभी। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसका मतलब है कि उम्मीद अभी पूरी नहीं हुई है। सही बात ये तो मंडो साहब के कहने का मतलब ये है। मगर मेरा मानना यह है कि देखिए, एक बिजनेसमैन होता है जिसके पास क्रैश हो जाता है, तो फिर उठता है। तो these people have to have the guts के फिर उठे। They have shown guts.
आई एम सेइंग इनने फिर उठना है 20 साल से मेरी आरोप सुने, 20 साल से इन्हें गट्स नहीं, बेचारे पिट रहे हैं 20 साल से। मैं नहीं मानता 20 साल से, देखिए घसीटे जा रहे हैं अपने आप को, वो गट्स में नहीं कहूंगा। मगर बेचारे देखिए जिंदा है, कोशिश अब जिंदा रहना ही अगर गट्स है, फिर तो मुझसे बड़ा कोई गट्स वाला आदमी नहीं। कोशिश तो जारी है, कोशिश जारी है, इनको अपनी टांगों पे खुद उठना है। गवर्नमेंट की डेफिनेटली हैंड होल्डिंग करेगी, मगर सारा दिल्ली की तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। दे हैव टू गेट ऑन टू देयर ओन लेग्स, क्योंकि देखिए किसी बिजनेसमैन का लॉस हो जाता है, वो रीस्टार्ट करता है, समझ लीजिए वही हालत है इनकी भी। गुलाम साहब बड़ी अच्छी बात आपने कही, दे हैव टू स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स। और एक आपके लिए 30 सेकंड है मेरे पास, मंडू साहब ठीक है, बोलिए। ये अभी कोईम साहब ने जो फरमाया कि इनको भाई मुझे ये चीज बताइए, हम उठे कहीं जबकि लोगों के पास ज़राई माश खत्म हो चुका है, कम से कम हमारे पास तो बाद में तो देखो हम तो देने वाले लोग हैं ना, हम तो वही लोग हैं जो सरकारें चलाते हैं, हम लोग हमसे टैक्स लेते हैं और हमसे सरकारें चलती है। आज हमारी हालत यह है कि हम मतलब टैक्स मतलब तो दूर की बात है, दुकान में 100 आइटम है, उन मतलब वो अवेलेबल नहीं कर सकते। देखिए मंडू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल अहमद मंडू साहब है हमारी यहाँ ये सीनियर लीडर हैं, और ये फेडरेशन के मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के शेख करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब दो बातें हुई, एक ये कि आपको कुछ चाहिए, और जो करीम साहब ने कहा हैंड होल्डिंग चाहिए ताकि आपको रास्ता दिखाया जाए और आगे निकाला जाए, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, एक बात। और दूसरा हम थोड़ा टाइम दे दें इसको, आप वापस मैदान में आए हैं, आपकी चीज़ें बिकनी शुरू हो गई हैं, आपका थोड़ा बिजनेस सेटल होने लगा है, देखिए आपको रिस्पांस क्या मिल रहा है आवाम से, पब्लिक से रिस्पांस क्या मिल रहा है, आप क्या कमा रहे हैं जो आप वापस इन्वेस्ट कर सकें, और सरकार आपको क्या दे सकती है। उम्मीद पे सही कहा, तो अब दुनिया कायम है, लेकिन जद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे इस हालत हाज़रा के इस नशस्त में आप शामिल हुए, और आगे भी मिलते रहेंगे, इसी में मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आते रहेंगे। आज इजाज़त, खुदा हाफिज़।